کے اسے پورا کرنا ہوگا، اس گنتی کو اسے پورا کرنا ہوگا اگلے رمضان تک، شعبان تک، اس سے پہلے انسان اسے بھر دے، اس کی بھرپائی کر دے۔ لیکن یہ جان لیں کوئی ایسا شخص ہے جو لاغر ہے، اتنا کمزور ہے، اتنا بزرگ ہے، اتنا بیمار ہے، اسے شفا یابی کی امید نہیں ہے، آگے اس سے امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ آگے اس طرح شفا یاب ہوگا، اس طرح تندرست ہوگا کہ روزہ رکھ سکے گا۔ اگر اس طرح کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ تو پھر وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا روز اس کے بدلے میں۔ لیکن ایک وہ شخص جو بیمار تو ہے، شفا یابی کی امید ہے، تو روزہ ترک کرے اگلے شعبان تک، وہ بعد میں اسے پورا کر لے گا۔ اسی طرح وہ مائیں، وہ بہنیں ایسی ہیں جو حمل سے ہیں اور انہیں دشواری ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، بچے کو نقصان ہے، تو پھر وہ روزہ ترک کریں۔ دودھ پلانے والی مائیں اور بہنیں ہیں، انہیں دودھ پلانے، اپنے بچے کو زندگی کا سوال ہے، ایسے موقع پر اگر انہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے اس میں دقت ہے، دشواری ہے، تو پھر وہ کیا کریں، روزہ ترک کریں، بعد میں اس گنتی کو پورا کر لیں۔ لیکن اگر دشواری نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ روزہ رکھیں، لیکن بسبب مرض، بسبب سفر دشواری ہے تو پھر وہ رخصت پہ عمل کریں، ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ اسلام کا اصول ہے، ضابطہ ہے، حکم ہے۔ روزہ انسان صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے سے رکے، پینے سے رکے۔ جو شادی شدہ مرد ہے وہ اپنے بیوی سے ملنے سے، ہم بستر ہونے سے رکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایام میں، رمضان کے مہینوں میں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب سورج ڈوبنے تک منع کیا ہے۔ اسی چیز کا نام روزہ ہے میرے بھائیوں، روزہ ہے۔ تو روزہ اگر ہم رکھتے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کھانے کا دل کرتا ہے، لیکن ہم رک جاتے ہیں، اپنا رب کا خوف ہمیں ہے، رب کا حکم بجا لاتے ہیں ہم، تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر اجر عظیم نوازے گا، اجر عظیم سے نوازے گا۔ بہت بڑا اجر ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ بہت ساری صفات کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جس میں سے ایک ہے روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑی مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ جان لیں کہ اگر آپ بھوکے اور پیاسے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت آپ کو پریشان کر رہی ہے، لیکن آپ پھر بھی روزہ رکھتے ہیں، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، تو یہ جان لیں ایک ایسا عمل ہے جس کا بدلہ، جس کا ثمرہ، جس کا رزلٹ آپ کا رب ڈائریکٹ آپ کو دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، فرشتے اسے فراغ دیتے ہیں، لیکن ایک ایسا عمل ہے کہ آپ کا رب خود آپ سے کہتا ہے کہ ایک ایسا عمل ہے جس کا بدلہ میں دینے والا ہوں تم کو، میں دینے والا ہوں تم کو۔ میرے بھائیوں، یہ کیا کم ہے، جس کا اجر کیا ہے، جس کا ثواب کیا ہے، جس کی نیکی کتنی ہے ہمیں نہیں معلوم، اور اتنی زیادہ ہے نیکی، اتنا زیادہ ثواب ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے رکھا تھا یہ، تو میں ہی اس کو بدلہ دینے والا ہوں۔ اس لیے روزے دار کے سلسلے میں آتا ہے کہ دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک جب روزے دار شخص افطار کرنے بیٹھتا ہے، اس موقع پر بہت خوش ہوتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو اپنے رب سے ملے گا اور اس کا رب اسے اجر دے گا، اسے ثواب، اس کی نیکی جو ہے اسے نوازے گا، اس کا بدلہ دے گا، تو یہ اس وقت خوش ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ کوئی بھی عمل کو ہلکے میں نہ لیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے روزہ جو آپ کو شہوات سے، آپ کو گناہوں سے روکتا ہے۔ یہ روزہ ڈھال ہے، ڈھال، الصیام جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ شہوات سے اور گناہوں سے روکتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ یہ روزہ شفاعت کرے گا قیامت کے دن آپ کے لیے، روزہ شفاعت کرے گا، اپنی سفارش کرے گا، اپنے رب سے کہے گا اے اللہ میں اسے کھانے سے پینے سے روکا تھا، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اللہ قبول فرمائے گا۔ بہت سارے فضائل ہیں، اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں،
भूख और शिद्दत, भूख प्यास की शिद्दत आपको परेशान कर रही है, फिर भी आप अपने रब को राजी करने के लिए रोजा रखते हैं, तो बहुत सारे फजाइल है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। तो हमें ये जानना चाहिए कि ये महीना कितना अहम है। ये पहला जुमा है इस महीने का, इसलिए मैं इसकी अहमियत क्या है, फजाइल क्या है, इससे मैं रोशनी डालूंगा। आगे आप अहकाम मसाइल पर और दीगर मौज़ूआत पर आप सुनेंगे, तो ये जान लें कि ये महीना आया है रोजा रखने के लिए, तो रोजे का एक मकसद है। और दूसरा अमल इसमें यह है कि आप इस महीने के अंदर कुरान की तिलावत करें, कुरान की तिलावत करें। कुरान का बड़ा गहरा ताल्लुक है रमजान से, जो कि इस महीने में नाजिल हुआ। खाली इतनी बात कहूंगा आपके सामने कि मन क़रा हर्फ़ मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसनह वल हसनतु बिअशरि अम्सालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फ वलाकिन अलिफुन हर्फ व लामुन हर्फ व मीमुन हर्फ। आप कुरान मजीद को खोलकर पढ़ते हैं तो ये जाने कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने अल्लाह की किताब से एक हर्फ पढ़ा, एक हर्फ पढ़ा, तो उसके लिए एक नेकी है, और एक नेकी उस जैसे 10 नेकियों के बराबर है, बिअशरि अम्सालिहा। और अल्लाह के रसूल कहते हैं अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। आज हम सब कुरान को पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं उन्हें पढ़ने की जरूरत है, कुरान को खोलकर देखने की जरूरत है, उंगली रखकर देख कर पढ़ने की जरूरत है। और अगर नहीं आता है पढ़ना तो आपके लिए कोई बहाना भी नहीं है। उलमा मौजूद हैं, अइम्मा मौजूद हैं, हुफ्फाज मौजूद हैं, आप उनसे सीखें। जिस तरह दुनिया सीखते हैं इसी तरह आप कुरान को सीखें। ये ना सोचें हमारी उम्र 40 को है, 30 को है, 50 की है, हम कहाँ कुरान सीख सकते। नहीं मेरे भाइयों, ये अपने जहन दिमाग से निकालें और आप कुरान को सीखने के लिए वक्त निकालें। बिलखुसूस इस महीने में आप वक्त निकालें और कुरान को शुरू से सीखें। और कुरान को मैं अपने माँ और बहनों से कहना चाहूंगा कि कुरान को खत्म करती है, बड़ी अच्छी बात है, मुबारकबाद की मुस्तहिक है। एक बार नहीं कई बार खत्म करना चाहती है, लेकिन वो भी ये जान लें कि कुरान को पढ़ने के साथ साथ उसको समझने की कोशिश करें। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब। ये किताब को अल्लाह ने जो नाज़िल किया, क्यों नाज़िल किया? इस मुबारक, ये जो मुबारक किताब है, अल्लाह ने इसे क्यों नाज़िल किया? ताकि उसके अंदर तदब्बुर से काम लिया जाए, गौर व फिक्र किया जाए उसके अंदर, यानी उसका तर्जमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें, उसके अहकाम को समझें। ये असल है। कुरान इसलिए नाज़िल हुआ है कि आप कुरान की तिलावत करें तो समझने के साथ साथ आप तिलावत करें। आप ये ना जाने कि ऐसा है कि अगर कुरान आप पढ़ते हैं तो आपको समझते नहीं है तो सवाब नहीं मिलेगा, सवाब उस पर आपको मिलेगा जो अल्लाह ने वादा किया है। लेकिन ये भी अल्लाह ने कहा इस किताब को आप समझें, और तब्दीली तभी आपको आएगी जो आप कुरान को पढ़ेंगे, समझेंगे भी। इसलिए जरूरत इस बात की है, बिलखुसूस उन लोगों से जो कई बार कुरान को खत्म करते हैं, उनसे गुजारिश है कि कुरान को समझने की कोशिश करें। उसके साथ साथ कुछ सूरतें ज़बानी याद करने की भी कोशिश करें। मेरे भाइयों, सिर्फ यही मतलब नहीं है कि आप कुरान को सिर्फ पढ़ते जाएं और उसको नंबर में दाखिल करें कि इतनी बार हमने खत्म कर लिया। बहुत सारे तरीके हैं। कुरान को आप सही से पढ़ें, तर्जमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें, समझें ना समझें तो दूसरों से पूछें, अहले इल्म से, और ज़बानी याद करने की भी कोशिश करें। इसी तरह महीना आया है तो आप इस महीने के अंदर अल्लाह ताला से दुआ करें, दुआ करें। दावतुस साइल एक लफ्ज है, हदीस के अल्फाज है कि 3 दुआएं ऐसी हैं, सलासु दाअवात ला तुरद, जो रद्द नहीं की जाती हैं। उन 3 दुआओं में से एक दुआ है रोजेदार की दुआ। आप मसाइल और मुश्किलात में फंसे पड़े, जिस भी एतबार से आप दुआ करें, दिन के किसी भी हिस्से में आप दुआ करें, रोजे की हालत में है, कभी भी आप अपने रब से दुआ करें। अल्लाह ताला ने वादा किया कि दुआ रद्द नहीं जाएगी, दुआ अल्लाह ताला लौटाएगा नहीं, कबूल कर लेगा। ये रोजेदार की फजीलत है। इसी तरह से आप दुआ करें, उसके साथ साथ ये महीना आया है, आप बढ़ चढ़ कर सदका करें, अल्लाह की राह में खर्च करें। जो ज़कात के लायक है, जो ज़कात देते हैं, उनका माल ज़कात, उनका माल निसाब को पहुंचता है,
वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो चीज है, जो माल है, उसको तो निकालना ही है, उसको ज़कात तो देना ही है, नहीं देता गुनहगार होगा, अल्लाह ताला गुस्सा होगा जो शख्स पर, तो अल्लाह का हक है। इसी तरह से उसके अलावा सदका और खैरात आपको करना है, नफली इबादत है। जिस तरह आप फर्ज नमाज पढ़ते हैं तो बाद में सुन्नत पढ़ते हैं, इसी तरह माली जो इबादत है उसमें ज़कात के लायक जो है, जिनका माल निसाब को पहुंचता है, उन्हें ज़कात की अदायगी करनी है। उसके अलावा आप सदका खैरात अल्लाह की राह में खर्च करते रहे, आप दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हुक्म दिया है, फुकरा, मसाकीन, गुरबा और ऐसे जो सेंटर हैं, दावा सेंटर, जो काम करने वाले हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, उनकी मदद करते हैं, जो इजलास करवाते हैं, लोगों को दीन की तरफ बुलाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, नेक काम और दीन का काम करते हैं, ऐसे लोगों की भी आप मदद करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के अंदर और ज्यादा सखी हो जाते थे, फयाद हो जाते थे। अजवत का लफ्ज आता है, सबसे ज्यादा सखी होते थे। इस महीने के अंदर खूब खर्च किया करते थे। आप हर महीना करते थे, लेकिन इस महीने के अंदर सबसे ज्यादा खर्च किया करते थे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि बिलखुसूस इस महीने में हम दीगर इबादतों के साथ साथ माली इबादत भी हम करें। अल्लाह ने जहां भी हमें नवाजा है, हम वहां खर्च करें, अपने हाथ को देने वाला हाथ बनाएं, और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जब कोई भी इबादत पेश करें तो खुलूस के साथ करें, इखलास के साथ पेश करें। कोई दिखावा ना हो, कोई रिया नमूद ना हो, कोई शोहरत तलबी ना हो, लोगों को बताना मकसूद ना हो, सिर्फ अपने रब को राजी करना मकसूद हो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वक्त इतना नहीं होता है कि सारी बातों को समेटा जाए। बस इतना जान लें कि ये महीना आया है इबादत के लिए। तो मैं नौजवानों से, अपने भाइयों से एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि अपने वक्त को गनीमत जानो। आपका ये दूसरा रोजा है, दूसरा रमजान है। आप अगर अभी भी भूल चूक में है, आपके अंदर एहसास नहीं पैदा हुआ, तो अपने अंदर एहसास पैदा कर ले और 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की कोशिश करें। आप तरावीह की नमाज क़ियामुल लैल बाजमात अदा करने की कोशिश करें। आप सहरी खाएं तो आखिर वक्त में खाएं, आप अफ्तार करें अव्वल वक्त में करें, आप खूब सदका तो खैरात करें, खूब खर्च करें अल्लाह की राह में, और आप अपनी जबान की हिफाजत करें, अपने अमाल को सही करें। अल्लाह के रसूल कहते हैं, ऐसा शख्स जो सिर्फ भूखा और प्यासा होता है, न गाली गलौज छोड़ता है, न झूठ बोलना छोड़ता है, न गीबत करना छोड़ता है, सारी बुराइयां लिए घूम रहा है, रोजा रखता है, ऐसे रोजेदार की रोजा कबूल नहीं है मेरे भाइयों। और ऐसे जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को रोजा रखने की जरूरत नहीं, अल्लाह के नबी कहते हैं। तो इसलिए जरूरत इस बात की है, आप रोजेदार हैं तो रोजेदार है तो समझे जो मुकाम है, अपनी जबान की हिफाजत का मसला हो, गीबत, चुगलखोरी, बोहतान तराशी, झूठ, जिस भी शक्ल में गुनाह हमसे सरजद हो रहे हैं, उससे हम इज्तनाब करें, वक्त का सही इस्तेमाल करें, ज्यादातर इबादत करें, अपने घरों में रहकर इबादत करें, मस्जिदों में आकर इबादत करें, और बाजारों से और मोबाइल पर वक्त को जाया बर्बाद करने से हम अपने आप को बचाएं। मेरे भाइयों, ये वक्त अल्लाह ने दिया है, इसे गनीमत जाने। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो माह मुबारक रमजान मुबारक है, अल्लाह इसमें हमें खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।